Okay, so stream is starting. So tonight we are going to build a web scraper, and for that, first step would be to understand how does it works. The second step, choose a tech on which I'm going to build it. The third step is to build itself. So first of all, I need to check how to just understand the working with the basic working of a web scraper. I will use this web scraper to feed the data to my AI, to the local AI, which I'm going to install within 1 or 2 days. So for that, I will collect the data and feed it and let it work. Mm, Okay, I guess first uh, first step would be to go to the chat GPT and ask how to do it. So Mr. GPT, help me. Mm, Okay, let's go and ask how to do it. Mr. GPT, help me to understand how a web scraper works. So Mr. GPT is going to help me. Let's see. What is a web scraper? A web scraper is a tool. La 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 la. Okay, a new website or job listing from LinkedIn. Job listing can be a very good thing to scrape. Yep. So for web scraping, what do I need? Visualize. No. How does a web scraper work? Open a website. Good. Look at page. Find what they need. Copy it down. But a scraper does this automatically using code. Okay, for example, some kind of website, we are going to get the website's HTML, and then from that HTML we are going to extract the details that we need for anything, for whatever you want. I want the details for my AI to get. I want to train my AI model, so I will get some online details. Maybe it can be, like, for example, it can be LinkedIn. I will get the job posting from LinkedIn and feed it to my AI. My AI can create resumes which will align according to the company and then can apply on my behalf. Yeah, AI can do that. And the AI that I will use for these kind of work would run it locally on my device. So first step would be to understand how a web scraper works. Then only I can do something. I can use many languages like Python, JavaScript, Java, Go. Yeah, good. I will choose JavaScript for my work because I have some JavaScript experience. So JavaScript will be the best language for me. So I'm going to go with JavaScript. Sorry. Legal and ethical notes. Always follow robots.txt. Terms of service. Avoid heavy requests. Don't overload server. Yep. But what is a robots.txt? What is this? Robot.txt is a plain text file at the root of the website that contains rules for each search engine crawlers.
telling them which pages or directories they are allowed to access. Okay, so it's basically for the web scraper or any crawler tool, whatever we are going to use. Real world usage, price tracking, job listing. Yep, good thing. Okay, so the first step would be, first step, how does it works? It's clear. Second step, the tech stack that I want to choose, it's done, it's clear. Now the third step, to build it. Well, I'm going to take help of my little AI friend. That would be, where's, we have 5.1 preview. Where's Claude? Okay, I will take the help of Claude. It's the best agent. Okay, Mr. Claude, let's do it. I will switch to the, I'll switch the view. Just a second. Yeah, good. So Mr. Claude, help me build a web scraper. Help me build a web scraper. Hello Utkarsh. I'm building a web scraper. I will use AI to build a web scraper, and I will use that data to train AI. AI for AI. Okay, so for the web scraper, help me to build a web scraper. I would use what will I use? Just a second, web scraper. Okay, yeah, no issue. I would use JS for this work. Yeah, let's see what happens. Mr. Claude is doing the work. The MCP server GitHub may have new tool and require interaction to start it now. I will look at it, what it is. Don't know it now. I will have built a web scraper using. Okay, so first of all, the first step is doing is to make a package.json. That's okay. Allow. Package.json ready. Yes, bro. I'm a web developer. Is my scraper ready? I guess it's ready. Most of the code is written. Let's check the code. It's using Axios and the Cheerio. I need to check what is this thing. I don't know much about Cheerio. It would be in npm installation. Okay, done. Feature proof syntax. Cheerio implements a subset of jQuery. DOM inconsistent browser code. First, you need to load HTML. This step in query is implicit since jQuery operate on baked in DOM. With Cheerio, we need to pass the HTML document. Okay, so we just need to load in the HTML. When did you start your web developing journey? Well, I started my web development journey in 2022. I did BTech. I started in 2022 and just graduated this year in 2025. That's kind of cool. Yeah, it will be.
It will be more cool when I will integrate this into the AI, the local AI, so that it can, um, I want a tool that can apply on my behalf automatically. Whenever he see a job posting, uh, like a web developer job posting on LinkedIn, he will get the data, and then he will prepare my resume according, which can align according to the company and can apply it automatically. This is what my target is for today. That's what I want to build. Today I'm just learning about how to make a web scraper. Construct. Okay, constructor. Hmm. How does this tool helps? Cheerio. Cheerio is a fast, lightweight JavaScript library used for web scraping in Node.js. It helps you extract data from HTML just like jQuery does in the browser, but on server. Okay, okay, it's just a tool to extract our data from the HTML files. Hmm. Okay, okay, okay. That's enough. Now the time is to understand this code. Now we have a constructor. Yes, I can explain. Web scraper is a tool that you can, you know, what the I can explain in steps how it works. Not exactly how what is a web scraper. It's just a tool to get the data from the website. Like you want data of all the products from Amazon. So there are two ways. First of all, you can go manually on the website, get the data, note it down, copy it somewhere, or whatever you want to do. And the second step is to automate, use bots to get the data, and that's what I want to do. um, this tool, first of all, it will hit the URL, get the HTML data, and then from that HTML data it will get all the details whatever we need. um, I guess we need to manually tell it what kind of details we need. Even I'm not very sure, so that's what I'm trying to learn today. Let me show you something. Okay, if I go to the top, a web scraper is a tool or program that automatically fetches data from website. It's just simply a tool. It's just simply a tool. It works in a very simple manner. It will just hit the URL, get the data, and it will copy it into our CSV file or in whatever format we need. Like we can also store it in JSON format. That's on us how we want to store that data. That's totally on us. JSON Puppeteer. Okay. Oh, JavaScript. No. Super fast, slower, yes, heavy, system resource, very light, heavy, static page. Okay, for static page, Cheerio, and for dynamic page, it's Puppeteer. Final summary type, HTML parser plus selector jQuery. Yeah, that's okay. Now I just need to focus on my code. Let's check how does this thing works. Is the constructor fetch HTML try const response axios.get URL headers timeout. Okay,
Yeah, you can learn it. It's, I guess this tool is not very complicated. It's fairly easy. If you try to look at the code, it's not complicated. It's just very simple. The fetch HTML and the scrape, these two functions. And what is this? Scrape multiple. Okay, another function. Okay, extract links, another function. What is this? Delay ms. What is this? Promise resolve set timer resolve delay in milliseconds. You have to delay the functionality. This code is written by Claude and it's a bit, I would say, a bit complicated. It's not very simple and easy. There are some things that even I need to understand. This is a constructor. Yeah, good. Default WebScaraber. There are move files, example.js. Keep it. We'll keep all files. Example.js. Console log example basic scraping. Example scraping. For example, here's the website. Here you can paste the link and it will start looking for the data on that website and will get the data. No, I'm not using Selenium. I'm just trying to build something from scratch, but with the help of AI, not by myself because I'm not that good at web development right now. Okay, we have a constructor scraper.scrape. We get the title, first quote, first author. Example 1, example 2, scraping multiple elements. Quote selector. Example 3, extract lines from a page. This is going to show how to get all links from a web page. This is to script. There are multiple type of examples. Like we can extract the links that are given on that website. We can extract. We just need to shape it manually. How and what kind of data that we need to extract. Scraping attributes. What kind of attributes? HTML attributes. Okay. We can also extract HTML attributes. That's something amazing. Try. Example 5. Okay, close. Run examples. Console log, web scraper examples. These are example used for. But how we are going to save those examples? I mean, in which format? Format. Okay. Okay, then I will ask some questions. In which format data will be stored? I don't see script. It's script multiple. Extract links. Script multiple. Fetch HTML.
This scraper is like for simple websites to get blog data. Wait. I will help you with the web scraper. No. With JSON, Node.js, so it can with dependencies. Currently returns data in JavaScript object. Okay, it's JSON. Options, single file, JSON per line, one JSON line per object, great for streaming larger data sets. No, I don't want such a complicated scraper. Okay, bro, go to sleep. Good night. Here's my chat. Okay. Okay, the thing that we need to change. I need a web scraper. I need a web scraper. Yeah, it is feasible. There are a lot of web scrapers already online. Yeah, you can search. Just a minute. Question: if API of any product isn't available to use, build a web scraper queries and we take the data and you're talking about like if API is not available. First of all APIs are not free. Yeah, you need to pay. You need to get the API key and then you can use. But it's not for APIs. It's for web URLs. You can search for Amazon. You can go to any Amazon link. You can just get your web scraper to go on this link, get the whole HTML output of this page and copy it and then extract the data out of that HTML. We don't need any kind of API or anything. We just need the URL for to get into the website. That's it. Where the platform doesn't provide API easily to small devs. Hmm. I hope you are understanding how exactly a web scraper is going to work. Like it's not for API, I guess. I'm not sure. I need to check. But from what I understand is that web scraper goes to a web page, extract the data and use it. That's it. Simple. Because these are simple. Uh, According to a normal perspective, it's just a page which displays a product. But for a web scraper, it's a data that you can get, and whatever you want to work with it, you can do your work with that data. Um, I want a web scraper to work on LinkedIn. Like it will go on a LinkedIn page, search for job posts, and then it can simply extract the data of the latest job posts available, and you know it can do. I want that data for my AI to build something like my new resume according which can align according to that company and just post or I'm not post but to apply in that company, something like that.
Okay, I need a WebScaraber that can get LinkedIn latest job posts, remove no other codes. Uh, tu- 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 I will just delete all these files. I don't want them. Latest LinkedIn, latest job posts. It compares the price of product like cab pricing. Okay, yeah, you can use, I guess, yes, you can use a web scraper to get the current details. But some website have like restrictions. They don't allow bots to just go on their website, get the data and use it. Some websites have restriction, so you need to check if that websites allow bots to crawl on their website and get the data. Some website, you just need to check. I saw a project. I was just browsing through Reddit, and there was a guy who in the comment section told that he built a project who can. It was a mobile app which compares the different prices on different platforms like Uber, like Ola, and one more there is, which is I don't remember its name. Rapido. Yeah, it can compare all prices of these three apps at the same time. Just you need to just add log in your details and get your destination where you want to go, and it can compare all the data. I'm not sure how he did that, but yeah, it's possible. What if you use proxy server cookies? Cookies for what? Yes, I am. No, I'm not working currently. I just did a 6 month internship. It finished 1 month ago. यार देखो, गाइडेंस के मामले में तो मैं यही कहूँगा, अभी सेकंड ईयर में हूँ, ठीक है, बढ़िया। अभी एक सेमेस्टर हो भी गया होगा, देन इसके बाद तुम्हारा भी थर्ड ईयर चलेगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। और
अभी टाइम है कि हाँ अभी तक अगर मज़े किए हो तो बढ़िया है, वेल एंड गुड, सही है, इतने टाइम में कोई दिक्कत नहीं। बट भाई अभी से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट बनाना। पहली बात तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके आओ कि प्रोजेक्ट जो तुम बना रहे हो, पहले तो अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट रेज्यूमे में दिखाने के लिए, ताकि तुम अच्छे से दिखा पाओ कि हाँ तुमने बनाया क्या, क्या उखाड़ा है, कुछ आता भी है। अब खाली सिंपल वेबसाइट बना देने से भाई कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। वेबसाइट तो ये एआई डाला बना दिया, उसको कुछ बढ़िया किया है, कुछ सीखा है, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो यार तुम अपने प्रोजेक्ट में। मतलब उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करो, पहले बनाओ बेसिक बनाओ, और कॉम्प्लिकेट करो, और कॉम्प्लिकेट करो, गिटहब पे पुश करते रहो, पुश करते रहो, पुश करते रहो, नए नए अपडेट्स। और भाई प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा खासा बनाओ ताकि उसमें दिखे कि हाँ भाई इस बंदे ने इतनी चीज़ें कर ली है, तो उस चीज़ का असर पड़ता है। प्रोजेक्ट ही तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉलेज के टाइम पे। वही भाई तुम्हें थोड़ा दिखाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ किया है, इसको अंडरस्टैंडिंग है। उनको, जो भी रिक्रूटर्स हैं भाई, उनको ये तो नहीं चाहिए कि बंदा परफेक्ट है, उन्हें भी पता है कॉलेज स्टूडेंट हो, जितना आता है वो बस बेसिक मतलब आना चाहिए भाई। और डीएस से वीएस से तो देखो भाई वो थोड़ा दिमाग खुलता है उसे करके। मैं तो ये कहूँगा भाई 2 प्रोजेक्ट अपने रेडी करो बहुत अच्छे, जितनी मेहनत कर सकते हो अभी से करो। मैं कहता हूँ कई महीने लग जाए प्रोजेक्ट बनाने में, बनाते रहो, उसमें एडिशन करते रहो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो उसको। चीज़ें कॉम्प्लिकेट करोगे जब भी सीखोगे, क्योंकि आगे जब जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें होती है कॉम्प्लिकेटेड। मैंने स्टार्टअप में काम किया था भाई, हर चीज़ पे काम कराते थे, बैक एंड में काम करा रहे हैं, फ्रंट एंड, पूरा फ्रंट एंड नहीं बट फ्रंट एंड भी, ये चीज़ें भी, थोड़ा डेवऑप्स का भी सीखने को मिल रहा है, ये भी वो भी, एआई में भी। मतलब स्टार्टअप में तो भाई हर चीज़ में लगा देते हैं। YDM यार, अगर तुम, ये जो सेकंड प्रोजेक्ट है तुम्हारा भाई, मैं कहूँगा बहुत बहुत सिंपल चीज़ है क्या मतलब, लाया उठाया, ये प्रोजेक्ट हो गए, मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बनाओ। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक वेबसाइट मान लो, तुम कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाओ। ये नहीं कि भाई मैं तो यूनिक ही बना दूंगा, कुछ नहीं, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाओ, क्योंकि वही बहुत जगह यूज़ होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत जगह यूज़ होता है, और उसमें बहुत चीज़ें होती है करने को। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें कि बैक एडमिन हो, और एक फ्रंट एडमिन कह रहा हूँ सॉरी, स्टोर फ्रंट बोलते हैं उसको। फिर उसके अंदर आते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, रिव्यू सिस्टम, उसके अंदर तुम एआई के चैट बॉट इंटीग्रेट करो, उसके अंदर व्हाट्सएप की सर्विस इंटीग्रेट करो, उसके अंदर ईमेल सर्विस इंटीग्रेट करो, और काफ़ी बहुत चीज़ें भाई, इतना दिमाग घूम जाएगा। और बाकी कुछ चीज़ें होती है जो तुम कंपनी में जाके सीखते हो, कि जैसे मैं ई कॉमर्स कंपनी में था, काइंड लाइफ नाम है, अगर सर्च करोगे तो काइंड लाइफ में मैं करके आया हूँ 6 महीने। तो वहाँ पे तुम ये सीखो कि ओवरऑल बिजनेस मूव कैसे करता है, हम इस वेबसाइट में अगर ये कर रहे हैं तो ये क्या करता है। बहुत चीज़ें हैं यार, अब ऐसे बताने बैठूंगा बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। एक मिनट, ये पहले वाला मैसेज नहीं देगा। आई मेड अ बेसिक प्रोडक्ट लाइक ए बॉट विच कैन ट्रांसलेट योर इन अ गूगल मीट एंड इन डिस्कॉर्ड। यार मतलब ये प्रोजेक्ट सही है ये ना, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी स्पेसिफिक चीज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें अच्छी चीज़ें हो, थोड़ा ज़्यादा हो। और जैसे एक और चीज़, कोई वेबसाइट ऐसे बना मैं अभी एक वेबसाइट बनाई है यार, एपेक्स डेव्स नाम से। अभी उसको मैंने उस पर डिप्लॉय तो नहीं किया है अभी किसी पे, लेकिन अभी करूँगा मैं उसके बाद वो भी। अगर तुम मेरी पहले वाली वो देखोगे ना, मतलब जो लाइव से, उनमें मैं करता रहता हूँ, बनाया मैंने एआई से ही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग देखो मेरे को है, ठीक है, लेकिन मेरे को काम थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट तैयार करना है, एंड बड़ा प्रोजेक्ट टाइम लेता है, तो एआई से मैंने बहुत जल्दी बनाया उसको। तुम अगर पहली लाइव देखोगे ना, 2 4 थोड़ा स्किप कर करके, तो तुम्हें दिख जाएगा। एंड उसी में मैं काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, एक ना प्रॉपर वेबसाइट बना के, एंड देन उसको चीज़ों को होस्ट करो, भाई दिखाओ, दुनिया को दिखाओ मैंने ये बनाया वो बनाया, बहुत एडवांटेज होगा। गिटहब भरा भरा करो, लिंक्डइन पे डालते रहो, और थोड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, डोमेन नेम खरीदो, करो कुछ, अच्छा लगता है फिर। अच्छा, डोमेन नेम ना भाई 500 रुपये में मिल जा रहा है, एक नेम्स चीप वेबसाइट है, जाओ डोमेन नेम खरीदो, अपनी वेबसाइट होस्ट करो और डोमेन नेम लगाओ उस पर।
प्रोफेशनल लगता है भाई, दिखाने में भी लगता है कि हाँ बंदे ने, भाई डोमेन नेम है। मैंने अभी तो अपनी पोर्टफोलियो के लिए लिया है एक डोमेन नेम, ये देखो। एक मिनट में स्क्रीन चेंज करता हूँ। हम्म, ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया, अभी पूरा रेडी तो नहीं है पर काम चल रहा है इस पे, इस तरीके से। ये तो इसीलिए है कि ताकि शोकेस कर सकूं इस वेबसाइट के अंदर कि मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैंने प्रॉपरली बना दिया है, वो भी थोड़ा जल्दी फिनिश करके, तो एकदम पूरा फिनिश हो जाएगा, उसको भी मैं होस्ट करूँगा। एंड देन अभी ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट मैं बना ही रहा हूँ, जैसे वेब स्क्रैपर का। तो चलता रहता है यार काम, बनाते रहो करते रहो। थैंक्स भाई थैंक्स, पसंद आया आपको। इस गिटहब नाउ, यार गिटहब रेज्यूमे देखो, मैं जो कहूँगा ना, कोई भी बंदा होगा जो डेवलपर है, जिसको थोड़ा नॉलेज है, जो देखता है, तुम उसे गिटहब दिखाओगे तो वही देख के लगता है कि अरे इस बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया है। गिटहब पे दिखता है कि हाँ बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया, बंदे ने काम किया है। तुम क्या, अगर वो करते हो ना तुम, कि पूरा एक प्रोजेक्ट रेडी किया उठा के चिपका दिया गिटहब पे, तो उसमें दिखेगा नहीं तुमने क्या किया है। मैं क्या करता हूँ, गिटहब पे काम करता हूँ, उस काम में अपडेट करता हूँ, फिर कोई एडिशनल चीज़ डालता हूँ तो गिटहब धीरे धीरे हरा होता है। मैं ये नहीं करता। मोस्टली लोग क्या करते हैं कॉलेज में, कि डीएस से क्वेश्चन किया, पेस्ट, अगला डीएस से क्वेश्चन किया, पेस्ट। भाई वो प्रोजेक्ट नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे डीएस से क्वेश्चन है, वो लीड कोड पे कर सकते हो, गिटहब पे डालने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। हम्म, चलो इसे करते हैं बंद। अभी तो देखो मैं यही बना के देखूंगा, इससे पहले तो कोड करवाऊंगा, थोड़ा कोड मैं भी पढ़ूंगा समझूंगा, देन उसके बाद इसको भी मैं गिटहब पे डालूंगा इस प्रोजेक्ट को। I will add a Puppeteer based LinkedIn scraper, update package.json dependencies। ठीक है, इस बार Puppeteer का यूज़ किया है, क्योंकि लिंक्डइन हमारा डायनामिक वेबसाइट हो जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत कोड किया, 200 लाइन लिख भी दी है। नाइस। एंड काम क्या किया है। शेट यार, एक गड़बड़ हो गई, मैंने मॉडल गलत यूज़ कर लिया, क्लॉड करना था। देखते हैं इसने क्या काम किया, उसके बाद ही पता लग गया। स्क्रैपर प्रोग्रेस अपडेट, आई एड अ सिंपल लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर। अच्छा यार, अगर लाइव ठीक लगी हो तो लाइक कर देना, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। Okay, when edit package.json with puppeteer dependency and new script, example LinkedIn. Hmm. Search URL, search in cookies, demonstrate running the script and saving result to। ओके, अब जरा कोड में देखते हैं क्या काम किया है। लिंक्डइन स्क्रैपर क्लास तो बना दी है।
सिंक, ठीक है। लिंक्डइन स्क्रैपर की फाइल, कॉन्सेशन पोस्ट। बट यार इसमें कोई डॉट डॉट फाइल तो बनाई नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं, मैं क्रिएट कर दूंगा। बट ये इसको रिक्वायर्ड क्यों है, क्या बोला इसने? आई डोंट गेट इट। एल आई ए टी, सेट एल आई ए टी एट एल आई ए टी कुकी है, समझने की ज़रूरत है। What is this? Concession, okay, if not session, error LIT environment variable not set. Follow readme file, ये तो देखी नहीं। LinkedIn scraping tool, scraper.js, ठीक है। LinkedIn is a private and possible recommended all. Okay. LinkedIn is a private service with term of use. Scraping LinkedIn may violate the terms of service and could lead to account restrictions. तो यहाँ पे छोटा सा चैलेंज है कि भैया लिंक्डइन को तुम डायरेक्टली ऐसे डेटा नहीं निकाल सकते। स्टिल वांट टू प्रोसीड फॉर पर्सनल यूज एंड अंडरस्टैंड रिस्क। लिंक्डइन सेशन कुकी, ब्राउजर अकाउंट, set environment variable for the cmd.exe. ओके, थोड़ा सा रिस्की आई गेस हो सकता है अगर मैं स्क्रैपर लिंक्डइन के लिए यूज़ करूँ। इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी तो ज़रूरी है। परमानेंट अकाउंट बैन रिस्की तो है, तो आई गेस लिंक्डइन पे यूज़ नहीं करना चाहिए अभी के लिए। नहीं, इसके लिए कोई ना कोई यार कुछ तो निकालना पड़ेगा, कोई तरीका जिसकी वजह से कुकीज विच नहीं यार, पता है मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ बट ये पता लग जाता है कि ऑटोमेशन टूल यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें भाई उनके पास तरीके होते हैं। अब एक छोटा सा तरीका तो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी वेबसाइट में। अच्छा बताता हूँ, जैसे मैंने अपना वो पोर्टफोलियो दिखाया था ना अभी, इसमें आप बॉटम में जाओगे तो इसमें सेंड मैसेज का ऑप्शन है। तो कोई भी बंदा स्पैम कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्पैम बॉट भी कर सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स डाले हुए हैं। अब बॉट यहाँ पे आएगा तो उसके लिए हनी ट्रैप लगता है। हनी ट्रैप में क्या होता है कि बॉट कुछ ना कुछ ऐसी एडिशनल डिटेल फिल करेगा जो कि यहाँ पे हिडन है, बट वो फिल करेगा एंड उसकी वजह से पकड़ा जाएगा। बॉट नहीं मेरे को मैसेज भेज सकता। भाई इतनी सिंपल चीज़ मैंने इसमें इम्प्लीमेंट की हुई है, तो लिंक्डइन पकड़ सकता है। एकदम डायरेक्ट रिस्क तो मैं नहीं लूँगा अपने अकाउंट से, तो मे बी मैं किसी अल्टरनेटिव अकाउंट से मैं एक बार को टेस्ट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए एक बेसिक वेब स्क्रैपर मैं यूज़ करूँगा, कोई बेसिक वेबसाइट पे जाके ऐसी थोड़ा जिसमें दिक्कत ना हो। आई गेस लिंक्डइन में इशू ना हो जाए। रिस्क लेना ठीक नहीं है भाई, असली अकाउंट मेरा गड़बड़ हो गया तो
Not LinkedIn then. अच्छा, अगर are there any websites which I can scrape with WebScaraber? एपीफाई वेबसाइट पर जाओ, वहाँ लिंक्डइन स्क्रैपर में एपीफाई। मैंने कभी स्क्रैपर यूज खुद से भी नहीं किया। स्क्रैपर टूल। अच्छा, यहाँ पे बने हुए हैं वैसे। लिंक्डइन। लिंक्डइन पोस्ट स्क्रैपर। प्रोफाइल स्क्रैपर, एक्सट्रैक्ट फुल लिंक्डइन प्रोफाइल, साइट्स वेरीफाइड ईमेल्स, फ़ोन नंबर। ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। नो लिंक्डइन कुकी रिक्वायर्स बल्क प्रोसेस। इन्होंने कुछ तो अच्छा कोड लिखा हुआ है इसके लिए, अगर ये इसको ऑपरेट्स विदाउट ऑथेंटिकेशन कुकीज़, काफ़ी सही है। हम्म जस्ट एक मिनट में ज़रा पढ़ लूँ पहले इसके बारे में और क्या क्या करवा सकता है। फीचर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल डेटा। यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ बताई यार तुमने। इस वेबसाइट को पहले तो मैं सेव करता हूँ। इफ आई। या गुड। ये जॉब स्क्रैपर है जिससे मैं बनाने की सोच रहा हूँ, बट आई एम टायर्ड ऑफ एंडलेस स्क्रॉलिंग ला 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 ला। टूल इज ब्रीज। अच्छा, अगर मैं इनकॉग्निटो विंडो से जाता हूँ लिंक्डइन में, अलाउ करता है। ट्राई सर्चिंग फॉर कोवर्कर, दिस इज फर्स्ट नेम, कुछ भी लिख देता हूँ, राहुल। ठीक है। प्रोफाइल्स अलाउ करता है एंड पोस्ट देखना अलाउ करता है। जॉब्स। हम्म विदाउट ऑथेंटिकेशन अलाउ कर रहा है, जॉब देखना तो अलाउ कर रहा है, तो फिर वो वाला चक्कर होना नहीं चाहिए इसमें। दूसरे रीजन को प्रोफाइल पोस्ट नहीं दिखाएगा, मतलब कंट्री की बात कर रहे होगी। अदर कंट्री में मान लो कोई यूएसए का बंदा नहीं देख पाएगा, ये इशू आता है। हम्म, तो ये भी होना चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रैपर। इससे एचआर वेचआर की प्रोफाइल तो मिल सकती है, एडवांटेज वाली चीज़ है। अच्छा। हम्म इसको आराम से बाद में ट्राई करूँगा मैं। और क्या क्या ऑफर करता है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्क्रैपर है इसमें। ई कॉमर्स स्क्रैपिंग, ट्रेड व्यू ऑल, अमेजिंग यार, काफ़ी अच्छा है। यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर।
Mm, mm, does not offer ability to search for profile across multiple countries with a single query. Mm, ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली मना तो नहीं किया हुआ है कि तुम नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ तो करते ही होगा गड़बड़। कैन आई स्क्रैप Amazon? सबकी टर्म्स एंड सर्विस के अगेंस्ट जा रहा है भाई। छोड़ो, गोली मारो, मैं करता हूँ। विदाउट ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए। क्लाउड का यूज़ करूँगा, क्लाउड कुछ बेटर करके देगा। I will update the LinkedIn scraper to work without authentication by targeting LinkedIn's public job and search pages, making the session cookie optional। हाँ ठीक है, इसको ऑप्शनल बना देगा अभी, देखते हैं फिर। अच्छा हाँ यार, एक छोटी सी चीज़, गिटहब ना को पायलट 1 महीने के लिए फ्री देगा, प्रीमियम। बस कार्ड लगा देना। एंड उसका काफ़ी एडवांटेज है भाई, बहुत अच्छा काम करता है। क्लॉड का यूज़ करना, क्लॉड सबसे बेस्ट है। हम्म, सॉल्व डिपेंडेंसी। ठीक है, चेंजेस किए, डन। लिंक डिस्क्रिप्शन नाउ वर्क्स विदाउट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जो एग्जांपल लिंक्डइन, कस्टमाइज योर सर्च, एडिट यूआरएल, कीवर्ड पाइथन डेवलपर, डेवलपर लोकेशन रिमोट। हम्म, चलो इनकॉग्निटो जाके देखते हैं एक बार। लिंक्डइन जॉब सर्च। यहाँ पे भाई इसको ऐसे पब्लिकली एक्सेसिबल लिस्टिंग, एक्सट्रैक्ट टाइटल। ठीक है, कीप इट। नहीं यार, एक चीज़ तो देखो है, वेब स्क्रैपर तो भाई बहुत मिल जाएंगे, बढ़िया काम करने वाले, काफ़ी अच्छे। बट मेरे को क्या है, वेब स्क्रैपर बनाना थोड़ा सीखना है कि एग्जैक्टली कैसे बना सकते हैं हम। मेन मोटो मेरा आज का यही है वैसे तो। अब वेब स्क्रैपर वो तो तुमने बता ही दिया यार, काफ़ी सही। अब उसका यूज़ करूँगा मैं, उसी से डेटा उठाऊँगा।
अभी बस मेरे को ज़रा लिनक्स सेटअप करना पड़ेगा, मैंने वो थोड़ा डिलीट कर दिया किसी रीज़न से, तो अभी दोबारा सेटअप करूँगा, देन उसमें लोकल एआई रन करूँगा। ऑथेंटिकेशन रन करके देख लेना चाहिए। एग्जाम्पल 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 npm आई भी तो करना पड़ेगा। अच्छी आदत पड़ गई ना लिनक्स की। हाँ हाँ आई नो यार, मतलब ये री इन्वेंटिंग द व्हील वाली बात है बस, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपने डेवलपर्स का काम क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग, यही तो मेन चीज़ है। तुम्हें बनी हुई हर चीज़ मिल जाएगी। मैं जो अपने प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं एआई से ही बना रहा हूँ, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि बनाया क्या, वर्किंग कैसे है, वो वाली चीज़ है। और सिलेनियम भी, मैंने सिलेनियम वैसे यूज़ नहीं किया है, मेरा दोस्त बता रहा था सिलेनियम के बारे में। मैंने एक बार बस देखा था उसको यूज़ करते हुए, इतना आइडिया मेरे को नहीं है सिलेनियम का, बट हाँ उसका भी यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेट करने के लिए ना। हम्म, ओके। कमांड क्या बोली थी उसने? कमांड कमांड जॉब सर्च कीवर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोकेशन क्या है? नॉट यूनाइटेड स्टेट्स यार, इंडिया काफ़ी है। साइन इन क्यों मांग रहा है यार अब? अच्छा जॉब्स वाला खुल रहा है, क्या कर रहे हैं? वाई जॉब्स? ठीक है, जॉब्स नॉट यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया, जॉब टाइटल वेब डेवलपर। ठीक है, तो ये चीज़ डाल के आ रहा है डेटा, मैं यही यूआरएल इसमें डाल दूंगा। जियो आईडी एंड पोजीशन, पेज नंबर। अगर इनके बिना काम चल जाएगा तो मैं चेक करता हूँ एक बार। हम्म, अभी तक npm इंस्टॉल चल ही रहा है।
ये काफी टाइम ले रहा है। कोई नहीं, होता रहेगा। मैं जब तक और चीज देखता हूँ। बट खाली इतने छोटे टास्क के लिए इतना टाइम, समझ नहीं आया। पपेटियर, लिंक्डइन स्क्रैपर, const url scraper, job length is greater than 0, console log first 3 jobs. हम्म अब मेन फाइल चेक करनी है। ये हेडलेस, ठीक है, टाइम आउट समझ आया। हेडलेस क्या है यार? हेडलेस टू, ओके ओके, मे बी विदाउट हेडर। दिस नॉट हेडलेस। Max result 25. Then base card, wait for selector, base card. We have option timeout, options timeout, ठीक है। Sync script, latest job search URL next. Max result, ठीक है। This dot max result. We have headless, arcs no sandbox disabled। ये हेडलेस वाली चीज़ मेरे को थोड़ा समझ नहीं आई, देखना पड़ेगा। हम्म As a value, but what is headless? Why we are using this? A web scraping headless refer to the running a web window on screen. Don't see any window or UI used for fast automated scraping. Okay, okay. Mm-hmm. Yeah, a sync scrape latest jobs. Mm. User URL, yeah, max. Issue. Max result. Wait, Puppeteer launch. Headless. This headless. No sandbox. ठीक है.
जिसका बाय डिफॉल्ट लॉन्चिंग का जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एंड कॉस्ट पेज, अवेट ब्राउजर न्यू पेज, मोजिला। अच्छा, न्यू पेज, सेट यूजर एजेंट। पपेटियर के बारे में जाके देखना पड़ेगा। आई गेस कुछ तो इश्यू है यार, npm आई अभी तक चल ही जा रहा है। इतना देर नहीं चलता है वैसे तो। डेप्रिकेटेड पपेटियर, पपेटियर आया भी इसमें। जी चाहिए मनु, पपेटियर की फाइल्स तो शो कर रहा है। अच्छा यस। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से npm इंस्टॉल कर रहा हूँ। आई डोंट नो, इसकी लोडिंग ही ख़त्म नहीं हो रही थी। ओके, डन हो गया। देन ये वाला सेक्शन, ये थोड़ा सा explain this part of code. What are these args and header in Puppeteer? एंड इसके बाद Puppeteer हो गया। सेकेंड थिंग सेट यूज़र एजेंट। अब ये वाली चीज़ भी समझने वाली चीज़ है। ये Puppeteer का साइज चेक नहीं है, बट वो मुझे कोई बग ही लग रहा था यहाँ पे। कितना अनपैक साइज 62.8 KB है भाई, इतना छोटा था। आई गेस वो छोटा मोटा कोई बग हो गया कुछ, मैं कह नहीं सकता, ऐसे अटकता नहीं है npm आई। वांट क्लीन अप। हेलो फोकस। तो चलो डन तो हो गया, npm आई तो चल गया। अब जरा पपेटियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। npm आई पपेटियर कोर अल्टरनेटिव इंस्टॉल इज लाइब्रेरी विदाउट डाउनलोडिंग क्रोम, compatible chrome during installation, downloading chrome। ठीक है, तो बेसिक एग्जांपल दिया है, इंपोर्ट किया, ब्राउज़र बनाया, update dot launch the browser and open a blank page, to it navigate to the url page dot go to, set screen size, open the search। स्क्रीन साइज हम किस लिए सेट कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमने कुछ किया है ऐसा। await dot page set view port, नहीं। open the search menu using keyboard, blah blah blah। भाई इसके बारे में कुछ दिया नहीं है क्या? नहीं, गिटहब का लिंक तो है इसका।
It's a JavaScript library which provide a high-level API, control Chrome or Firefox over DevTool protocol. Runs in with the API. खाली यही दिया हुआ way to control Chrome or Firefox over DevTools protocol. Okay. So to instrument inspect debug and profile Chromium, Chrome or other link based browser. Chrome DevTool use this protocol and team. The accessibility class provide method for inspecting browser accessibility tree. Browser connect to via Puppeteer.connect or launch via Node.launch. Also instance that is either GPT ने क्या बताया Puppeteer.launch explain this starts a browser controlled by Puppeteer. Okay, tell whether to run headless invisible browser. This uses earlier variable. ठीक है. This like startup argument help to run Chrome safe in server environment. No sandbox, disable Chrome sandbox security. Chrome won't start. बट हम विंडोज में कर रहे हैं. सिक्योरिटी फीचर ठीक है. Important these options. We have a new page. New page कहाँ पे? Const page. ठीक है. Browser dot new page. New tab. के जो काम मैनुअली होना चाहिए वो यहाँ कोड से हो रहा है. ब्राउज़र लॉन्च हुआ, ब्राउज़र का टैब बना एंड देन उसके बाद सेट यूज़र एजेंट. यूज़र एजेंट सेट करना क्या होता है? That's what device and browser you are pretending to be. ये कुछ सही है. मतलब what device and browser you are pretending to be. ओरिजिनल डिटेल्स की जगह ये वाली डिटेल्स हम दे सकते हैं. सही है. Why set user agent in scrapping? Block bots, Puppeteer's default. Obvious. Using a real browser. People look like a normal user. Tends to be Windows 10 machine. Using Chrome 115 browser. Capture, some show limited or fake data, some refuse to load all. ठीक है. Only how to scrape dynamically loaded elements. How to extract data from a real site example demo. If you want to, I can show you. Yes, please. Explain this. पता होना चाहिए विदाउट डिटेक्शन हम कैसे डेटा स्क्रैप कर सकते हैं. Nice, you're getting it. आगे बताओ, आगे बताओ. I cannot help you with GPT as usual by bypassing hard protection like Cloudflare Advanced Bot Wall. But I can help you how to make your scraper behave more like a polite real user.
गेट ब्लॉक्ड वाइल, चलो थोड़ा सा तो करेगा. डोंट लुक लाइक अ डीडॉस बॉट, लुक लाइक ए नॉर्मल यूजर. ठीक है. If a path is disallowed, don't scrape it. Okay. Read the TUS. Some website explicitly forbids scraping. Prefer official APIs. Pick another source. Just to behave like a machine, not a human. Add delays between requests. Random. Limit concurrency. Don't open 100 tabs or fire 200 requests at once. ये तो DDoS जैसे ही लगेगा अगर इतनी रिक्वेस्ट एक बार में सेंड करी, जो कि नहीं करनी चाहिए. एंड आगे क्या बताया. बट हम एक टाइम में एक ही रिक्वेस्ट सेट करने वाले हैं, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. 1 to 4 random. Look at this signal. User agent, put screen size, language, time zone, cookies, whether JS is executed normally. You already saw. Viewport, set viewport. I guess viewport set नहीं हुआ है, कर देना चाहिए. टिपिकल लैपटॉप. ठीक है, कर देना चाहिए viewport भी. ठीक है, ये वाली लाइन भी ऐड कर देते हैं. सेट एक्स्ट्रा HTTP हेडर्स, ठीक रहेगा. डिटेक्शन जितना कम रहे उतना बेटर है. Don't disable everything. Some people block all images script to speed up. Can look suspicious on some sites. Better approach. Need heavy resources if you are sure site does not rely on them. Don't repeat obvious bot pattern. Things that scream I am a bot. Hitting the same URL every 2 seconds for 2 hours. Walking the site in perfect order. ID 1, 2, 3, 4 without variation. Okay. Exact same time with exact same behavior. जितनी ज़्यादा हमारी चीज़ों में रैंडमनेस होगी उतना बेटर है. जितना रैंडमाइज रहेगा, लिखा भी यहाँ पे रैंडमाइज द ऑर्डर बिट, एड सम ह्यूमन लाइक टाइमिंग, बट डोंट गो क्रेजी विथ फेक माउस मूव्स एवरीवेयर. दैट कैन ऑल्सो लुक फेक if done badly. Space out long crawl cross time. Talk gracefully. Even with the best practice, you will sometime get HTTP 403 forbidden, 429 too many requests, captchas, empty responses instead of writing them. So stop scraping or slow down. Maybe switch to another data source. Okay. कौन से वाली यार, वो npm वाली. अगर npm वाली कह रहे हो वो तो हो गई, तो npm कैंसिल करके दोबारा रीस्टार्ट, दोबारा से npm आई किया, डन 1 मिनट में. वो बीच में थोड़ा सा अटक गया था लेकिन अभी ठीक है. अभी मैं वही चेक कर रहा था जरा पपीटियर को कैसे थोड़ा बेटर बनाया जाए, कैसे ऐसे एक्ट कराया जाए कि हाँ वो ना पकड़ा जाए. सेट व्यू पोर्ट, सेट यूजर एजेंट भी सेट हो गया है. सेट व्यू पोर्ट भी इसके नीचे लगाता हूँ. एक्स्ट्रा HTTP हेडर, ठीक है. ये तो खाली इसको सेट करने के लिए हो गया. ऑथेंटिकेशन needed for public job listing.
अभी ट्राई किया। Await page dot go to search URL, wait until network idle 2। अब ये क्या चीज़ है? टाइम आउट, ठीक है। अवेट पेज, वेट फॉर टाइम। द डिक्लेरेशन वाज नॉट डेप्रिकेटेड, कोई दिक्कत नहीं। डेप्रिकेट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ बिल्कुल। जॉब लिस्ट में भी लेजी लोडेड, वेट फॉर अननोन सेलेक्टर। 1 सेकेंड के लिए। पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर। तो फिर इसकी जगह यूज़ क्या करना चाहिए? टाइम आउट के बारे में लिखा है कहीं पे यहाँ पे? टाइम आउट, वेट फॉर सेलेक्टर लिखा है, बट वेट फॉर टाइम आउट के बारे में आई गेस कुछ नहीं होगा। Deprecated solution, get started, core concepts, ठीक है। तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स डॉक्स, तो ये रहे यार, मैं भी पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा था। क्लोजिंग अ ब्राउजर, पपेटियर डॉट लॉन्च, पपेटियर डॉट न्यू पेज। ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा, ये तो क्लोज करने का है। ब्राउजर कंटेक्स्ट, put puppeteer from puppeteers, पेज 1 पेज 2, कोई दिक्कत नहीं, एक ही पेज। परमिशन, इसमें परमिशन के लिए मैंने क्या दिया है? लॉन्च में आर्क्स में डाला हुआ है खाली। इसने क्या डाला है? ब्राउजर डॉट डिफॉल्ट। इस चीज़ का यूज़ नहीं किया है। वेट पपेटियर लॉन्च, दैट पेज खोल दिया सीधा। कनेक्टिंग टू अ रनिंग ब्राउजर, नहीं नहीं नहीं। पेज इंटरेक्शन, पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर का यूज़ किया है? नहीं। गो टू का यूज़ किया है। गो टू का हम यूज़ किस लिए करेंगे? गो टू यहाँ पे मेंशन है, वेट फॉर सेलेक्टर। पहले एक बार इसको टेस्ट भी करके देख लेना चाहिए, ये क्या आउटपुट देगा अभी। ओल्ड हेडलेस डिप्रिकेशन, अच्छा ये रन कर रहे हैं यहाँ पे। क्रोम हेडलेस शेल अलाउ किया। ओके, स्क्रिप्ट कर लिया है डेटा, डेटा स्क्रिप्ट किया है इसने। फाइल बनाई अभी, जेसन चेक करते हैं अभी। एंड क्या ये डेटा सही है? मुझे एक बार इनकॉग्निटो में जाके देखना पड़ेगा क्या ये चीज़ सही दी है इसने। जॉब पोस्टिंग, posted 25/7 25 जॉब पोस्ट निकाल दी है, ठीक है। बट ये डेटा मेरे अभी किसी काम का नहीं है, बहुत ही कम डेटा है।
खाली टाइटल है, कंपनी है, लोकेशन है, पोस्ट है, बट डिस्क्रिप्शन ये सब चीज़ें तो ये भी चाहिए। अब यहीं पे प्रॉब्लम है आई गेस। स्क्रैपर को बोलूँगा हर हर जॉब के लिए डिटेल लेके आना, तो आई गेस वहाँ पे बॉट की तरह पकड़ा जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को कौन सा एक ही बार में हज़ारों जॉब्स देखनी है। थोड़ा सा ह्यूमन लाइक बिहेवियर ऐड करना है उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ जॉब्स का जो लेटेस्ट जॉब्स हो उनका डेटा उठा के ला सके इन डेप्थ पूरा डिटेल में। बट पहले थोड़ा कोड भी समझना पड़ेगा। ये तो गो टू है। गो टू में तो वेट वेट एंटिल, अच्छा हाँ इसका क्या बताया था उसने, जीपीटी ने? कहाँ गया? The Puppeteer page loading option used with page.go to, or how long to wait before considering the page fully loaded? Hmm, ठीक है, wait until the page finishes loading almost everything and is not busy anymore, अच्छी चीज़ है। Network idle 2, timeout, जॉब लिस्ट में भी लेजी लोडेड, ठीक है लेजी लोडिंग के लिए सेट किया यहाँ पे टाइम आउट, एंड उसके बाद यहाँ पे सेट किया है पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर। सेलेक्टर तो सेलेक्टर क्या है? व्हाट इज दिस थिंग? is a low-level API compared to locators that allow waiting for an element to be available in DOM. It does not automatically retry the action if it fails and require manually disposing the result. Okay, div class name, wait for selector, timeout in the cache. बट जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे जो इसने यूज़ किया है थोड़ा डिफरेंट है। आई डोंट गेट इट, ये डिफरेंस क्यों है यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक्सप्लेन दिस without waiting. Sometimes you want to know, that elements are already on the page. In that case, Puppeteer offer multiple ways to find an element. Page not return a single element. Hmm.
What does page dot wait selector do? It pauses your code until a specific element appears on page. ठीक है. पटेल जिसने भी बनाया यार काफ़ी अच्छे से बनाया. सही सही चीज़ें दी हुई है, वेट फॉर सेलेक्टर एंड ये सब. It pause your code until a specific element appears on page. This timeout means wait up to 15 seconds for that element to show up. It normally throws this is a part catch. It catches crashing of script. It continues normally. अच्छा, कैश डाला हुआ है. हाँ. ठीक है ठीक है ठीक है. बट इसमें वेट फॉर सेलेक्टर. अच्छा, सेलेक्टर ऊपर लिखा हुआ ये बेस कार्ड. एंड बेस कार्ड का क्या मतलब है फिर? ये मेरे को समझ नहीं है. बेस कार्ड आई मीन लिंक्डइन का है और ये इसको एआई एजेंट को पता है इसलिए इसने लिखा है कि ये बाय डिफॉल्ट होता है. लिस्ट बेस कार्ड बेस कार्ड बेस कार्ड. ठीक है, अभी के लिए इसको लेके चलते हैं. कैच में कुछ नहीं करेगा, जस्ट आगे चला देगा. लेट प्रीवियस हाइट 0. स्क्रॉल टू लोड मोर रिजल्ट. सिंपल अप्रोच, बहुत अच्छी चीज़ है. तो ठीक है यार, पब्लिक डेटा मिल पा रहा है, ऐसी बात नहीं है. मेरे को लगा एक बार के लिए कि ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि नहीं है. तो उसके बिना बढ़िया काम हो जाएगा. एंड यहाँ से डेटा उठा के मेरा काम हो जाएगा जो मेरे को करना है. स्क्रॉल टू लोड मोर रिजल्ट. ठीक है. इफ हाइट इक्वल टू प्रीवियस हाइट ला 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 ला. बॉडी स्क्रॉल हाइट, विंडो स्क्रॉल. ठीक है, तो इसमें लॉजिक लिखा हुआ है खाली स्क्रॉल करने का. एक्सट्रिक्ट जॉब्स. बेस का टाइटल S3 है यार. आई गेस ये इसने क्वेरी सेलेक्टर जो लिखे हुए हैं इसको पहले ही पता है कि हाँ लिंक्डइन के जो क्वेरी सेलेक्टर्स हैं वो क्या है. इसीलिए आराम से यहाँ पे इसने ऑलरेडी इतना कुछ लिख दिया है. नहीं तो मुझे मैनुअली शायद ढूंढना पड़ता है इसके लिए. जस्ट वांट टू मेक श्योर. एक बार मैं यही से ही पूछना चाहूँगा ये चीज़. एरेज फ्रॉम डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर ऑल दिस कार्ड. ठीक है. कॉस्ट रिजल्ट. रिजल्ट में टाइटल कंपनी लोकेशन. तो आई स्मॉलर देन मिनिमम मैक्स डॉट नोड्स डॉट लेंथ. ठीक है. हर नोड पे क्वेरी सेलेक्टर टाइटल रियल इनर टेक्स्ट डॉट ट्रिम. ये तो खाली बेसिक चीज़ें लगाई हुई है, ट्रिम ट्रिम ये सब. एंड यहाँ पे रिजल्ट में पुश कर रहा है. बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छी चीज़ बना दी है इसने.
इम्प्रेसिव है। एंड तो एक बेसिक चीज़ अभी मैं बना चुका हूँ जो मेरे को बनानी थी, कि वेब स्क्रैपर मेरे को चाहिए था जो लिंक्डइन से जॉब उठा के दे सके मेरे को, एंड वो मिल गया है। अब इसके अगले फेज़ में जो मैं बनाना चाहूँगा वो ये कि जॉब की पूरी डिटेल आए, जॉब के पेज पे क्लिक करके वो जाए एंड सारी डिटेल्स लेके आए। एंड ये चीज़ भी पॉसिबल हो जाएगी, कोई बड़ा टास्क नहीं है। जब इसने इतनी आसानी से बना दिया है उसी तरीके से वो चीज़ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एंड ये इसका फ़ेज़ 2 रहेगा। तो आज के फ़ेज़ 1 में तो इतना ही। मैं जितना मेरे को चाहिए था, जितना मेरा आज का टारगेट था वो हो गया है। पहला, जो कि मेरे को समझना था कि एक वेब स्क्रैपर कैसे काम करता है। दूसरा, जो मेरे को टेक्स्ट के लिए यूज़ करना था, ये जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी काम कर रही है। एंड थर्ड, इसको बिल्ड करना, जो कि छोटा मोटा काम इसका हो गया है, अब ये काम कर सकता है। सो आई गेस आज के लिए तो इतना ही। एंड इससे आगे जो इसका फ़ेज़ 2 का काम है, जो कि पूरी फुल डिटेल्स लेके आएगा जॉब का, वो मैं कल करूँगा इसके फ़ेज़ 2 में। सो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।